Hello friends, today we are going to study the third level from class 12. This is very interesting chapter. It was written by Jack Finney. Jack Finney is a famous writer for science fiction and thrillers. So now you will discover that what is there, right? It is a kind of suspense. Now you see what is there in the story. The story begins, there are mainly two characters, Charlie and Sam. Charlie is the protagonist and Sam is the psychiatrist, his friend. Now see, in the beginning of the story, actually in the beginning there are names of three stations. Grand Central stations, right? And Grand Central station is one of the biggest stations there. So there are actually two levels. Now let me tell you what is levels, right? See, there levels you can consider as a floor. When you have the floor there on the roof, like first floor, second floor, but here level in the ground, like when you go to the Delhi metro, there you can find there, in the ground there is one level, and then below that you will go, there will be second level. And the one ground, one level means one ground, second level, second ground, right? So this way there were two levels actually, but the narrator Charlie is claiming that he had reached the third level. So the president of all three stations would swear, मतलब वो शपथ लेकर कसम खाकर बोलेंगे, जैसे it is written there, at the timetables, at the time boards. Like there in our country, we swear in the court by the name of Gita, in the London by the name of Bible, but there sarcastically the writer has written not by the Bible, rather by the timetables. Yes, so they swear that there is no third level, कोई ऐसा third level नहीं है, but narrator is saying that I have reached. So to confirm this, he went to the psychiatrist friend named Sam, and when he went to the friend, अब चूंकि किसी ने तो थर्ड लेवल देखा ही नहीं है, अगर ऐसा होता तो कोई और भी वहां पहुंचता, राइट? तो ये बोल रहा है यार मैं सच में गया हूँ, आई हैव गॉन देयर, प्लीज बिलीव मी, यार विश्वास तो करो, मैं सच बोल रहा हूँ. बट हिज फ्रेंड सेड दैट नो देयर इज नो थर्ड लेवल एक्चुअली. तो भैया क्या बात है, थर्ड लेवल नहीं है? तो ये बोल रहा है जब मैं थर्ड लेवल में जब मैं गया तो मैं अपनी वाइफ के लिए मैं टिकट्स भी खरीद रहा था. अगर मैं इनसेन होता, मैं पागल होता, इफ आई कुड बी इनसेन, I would not remember my life, I would not remember my wife, but I was purchasing the tickets for my wife also when I was at the third level, right? So I am not insane. But Sam is trying to convince him by the line that this is a walking dream wish fulfillment, and you simply want to refuse from the reality. Refuse from the reality means आप reality से escape करना चाहते हो. What is the reality? In reality, modern world is full of insecurity, fear, war and worries. Let me tell you the background of the story. Like actually, the setting of the story is 1945. Second World War. Yes. So that time there was big problem there in the country, and naturally you know very well, like even now you can connect the story with this situation. Like there is corona, there is pandemic all around, and due to pandemic people might think यार कोई ऐसी जगह चलिए जहाँ ये pandemic ना हो, ऐसी जगह चलिए जहाँ शांति हो, जहाँ खुशहाली हो, right? People like to go to that third level. Yes, so Sam is giving the logic that this is just a refuge, R-E-F-U-G, it is just a refuge, escape from the reality. आप reality से बचना चाहते हो, you want to escape the problem, right? And that's why this is a waking dream wish fulfillment. तो आपने imagination में ऐसे third level को create किया, and there you rest, and you are feeling that you have actually rest. You have actually not rest. इनके जो friend है, his friends also agree to him. His friends also agree to him कि भाई ये आपका दोस्त सही कर रहा है ना, Sam is right, कि भाई तो थर्ड लेवल है ही नहीं, nobody has gone there, और किसी को दिखाई भी नहीं देता है, और तुम कहीं ना कहीं रिफ्यूज चाहते हो, एस्केप चाहते हो अपनी प्रॉब्लम से. तो बोल रहा है कि यार मैं कोई एस्केप नहीं चाहता, I don't want to escape, right? And I don't want to refuse at all. Then he describes
द इंसिडेंट when he reached and how he reached the third level. Now you listen how he reached. Actually once in summer, like he worked in the office till late, देर रात तक वो ऑफिस में रहा है ना. When he left the office, he was in a hurry, right, because he wanted to reach his home to his wife Louisa, right. He wanted to come to house, right, his home Louisa, to Louisa, right. तो अपनी वाइफ के पास वो आना चाह रहा है, तो वो सोचा कि यार बस से लेट होगा जाने में, तो क्यों ना हम ट्रेन ले लें. और ट्रेन लेने के लिए उसको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे में जाना होगा, लेवल पर जाना होगा, ठीक है. तो ही डिसाइडेड टू टेक द ट्रेन. तो इसलिए वो ही टुक द सबवे, राइट. He went down. There were no stairs, there was actually sloping. Yes, so you might have seen there in Lucknow also there is a subway, there is a tunnel, right. So he went to the first tunnel and he reached the first level. Then फर्स्ट लेवल में जो ट्रेन्स मिलती थी वो मॉडर्न ट्रेन्स होती थी, ठीक है. तो सेकेंड लेवल में जो ट्रेन मिलती थी सबर्बन ट्रेन्स विच एक्चुअली वेंट टू आउट ऑफ द सिटी ऑल्सो, ठीक है. तो ही वेंट टू द सेकेंड लेवल, वो सेकेंड लेवल पर जा रहे थे. और एक चीज़ ये भी बताते हैं कि दैट सेकेंड लेवल इट्स एक्चुअली अ वेरी ह्यूज स्टेशन. सेकेंड लेवल में जब वो पहुंचते हैं, व्हेन ही रीच टू द सेकेंड लेवल, राइट, तो उन्हें एक आग डोरवे नजर आता. आग डोरवे इस तरह का होता है. तो ही डग्ड इनटू दैट, मतलब झुक कर उसके अंदर गया, राइट. एंड व्हेन ही वेंट देयर he found that he is in different world. One more thing he describes, वो connect करते हैं कि like Grand Central growing like a tree. Why he said this, is growing like a tree because he feels that there are lot of ways, lot of corridors, और हर समय कुछ ना कुछ बढ़ता ही रहता है. क्योंकि वो बताते हैं कि एक बार वो एक वे लिए और वहाँ से वो पहुँच गए इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल के पास पहुँच गए. एक बार टनल से गए, एक सबवे लिए, किसी रास्ते से वो निकले वहीं स्टेशन के पास से, तो पहुँच गए एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट, जो कि 3-4 ब्लॉक्स के बाद आते हैं. ब्लॉक्स का मतलब वहाँ है कि 3-4 यू कैन से कॉलोनी, 3-4 कॉलोनी के बाद वो आता है, ठीक है, या सेक्टर यू कैन से. तो ये दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट कि ये बहुत बड़ा है और इसके ब्रांचेस कई निकल रहे हैं, एक ट्री की तरह. सार्कास्टिकली ही सेज दैट ऑथर राइट्स दिस कि इट इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री. ये ट्री के जैसा बड़ा हो रहा है, क्योंकि कौन सा रास्ता कहाँ से निकल रहा है, कहाँ को जा रहा है, ये पता ही नहीं चलता है, ठीक है. अब वो आर्क्ड डोरवे से एंटर किया तो वो किसी दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गया. क्यों, कैसे उसको फील हुआ कि ही इज देयर इन द डिफरेंट वर्ल्ड? बिकॉज व्हेन ही रीच्ड देयर ही फाउंड different situation. What were the different situations there? A few ticket windows. There were a few ticket windows, whereas at Grand Central Station there were a lot of टिकट विंडोज. लेकिन वहाँ उस जगह पे क्या था, बहुत कम टिकट विंडोज थे. एंड देयर वर फ्लिकरिंग ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और वहाँ फ्लिकरिंग ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे, जो कि यहाँ नहीं थे. यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लाइट्स हैं, राइट. And brass spittoons, you know that pikdan where we just actually spit, yes. And derby hat इस तरह का hat होता है, which is not worn in 28th century, which was worn actually during 1890. और वो घड़ी जो गांधी जी की घड़ी याद होगी, छोटी सी जो कमर में लगा के चलते थे, वेस्ट वॉच. तो गोल्ड के वेस्ट वॉच भी देखे मैन को पॉकेट से निकालते हुए, तो लगा कि इन सारी चीज़ों का यूज़ तो अब 20th सेंचुरी में कोई नहीं करता. सच थिंग्स वर यूज देयर इन 19th सेंचुरी, 1880 के टाइम में, ठीक है. डर्बी हैट्स, 4 बटन सूट्स, राइट. वैरायटी ऑफ बियर्ड्स, कई तरह का बियर्ड्स उनको देखने को मिलता है, राइट. दिस वे विस्कर्स, राइट. तो वैरायटी ऑफ बियर्ड्स ही सॉ देयर, एंड नाउ ही फील्स दैट कि ये somehow I have come to the different world. Confirm कैसे होता है? One boy was taking the newspaper, right? So he saw the date, और न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, जो कि अब बंद हो चुका है. इट वॉज नॉट बीइंग प्रिंटेड, इट वॉज प्रिंटेड देयर इन 19th सेंचुरी, द वर्ल्ड. और उसमें जो डेट देखते हैं, जून 18
1894। तो 1894 देखने के बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि वो क्या किया है, वो टाइम ट्रैवल कर लिया है, राइट, एंड ही हैज़ रीच्ड द डिफरेंट वर्ल्ड। नाउ ही वाज अ लिटिल एक्साइटेड। अब देखो ये परेशान नहीं होता बल्कि सोचता है कि चलो ये अच्छा मौका है यहाँ से कहीं भी जाने का, है ना, तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो ही डिसाइड्स टू गो टू गेल्सबर्ग, राइट, इलिनॉइस, गेल्सबर्ग, जहाँ वो एक्चुअली बचपन में रहा था, वेयर ही लिव्ड देयर इन द चाइल्डहुड। वन थिंग आई मिस्ड, आई मस्ट टेल यू, यहाँ ये भी है, उनका फ्रेंड बोलते हैं कि जैसे जो भी जो भी प्रॉब्लम से बचते हैं तो कई सारे हॉबी को भी पाल लेते हैं, कई सारे हॉबीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे स्टैम्प कलेक्शन। तो ये स्टैम्प कलेक्शन का भी काम करता है। तो इस पे चार्ली अग्री नहीं करता, ही डजंट अग्री टू दिस स्टेटमेंट कि स्टैम्प कलेक्शन जो है एक स्केप है प्रॉब्लम से बचने का एक तरीका है। ही डज नॉट अग्री बिकॉज ही गिव्स द लॉजिक क्या देता है ये कि माई ग्रैंडफादर, इन हिज टाइम, in 19th century, in his time, it was very peace situation, he was very happy, he did not have problems. So he also had the same hobby of collecting stamps. So did he want the refuge from the reality? And even if Franklin Roosevelt जो कि president थे अमेरिका के, राइट, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सो डिड ही ऑल्सो वांट द रिफ्यूज, डिड ही ऑल्सो वांट टू स्केप फ्रॉम द रियलिटी? क्या वो भी बचना चाहते थे? ठीक है, तो इसमें अब जैसे यू कैन टेक इन द डे टू डे लाइफ ऑल्सो, लाइक आर देयर सम अदर वेज टू स्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम से बचने का कुछ और होता है। जैसे यू आर इन टेंशन, तो टेंशन से बचने के लिए क्या करते हैं? टेंशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? टेंशन से बचने के लिए हम कई सारे हॉबी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पेंटिंग, ड्राइंग, विल लिसन म्यूजिक एटसेट्रा। तो उनके अनुसार ये है कि यू आर एक्चुअली डूइंग दिस टू एस्केप problem, but he did not agree to this, right? But in day to day life, we can feel it. Well, so here now he went to different world। और कैसे उन्हें पता चलता है? उन्हें पता चलता है इन सारी चीज़ों को देख करके, क्योंकि वहाँ का सिचुएशन बिल्कुल अलग था, बियर्ड्स बिल्कुल अलग थे, राइट, वहाँ के ड्रेस अलग थे, और वहाँ का जो टिकट काउंटर था वो भी वुडन का बना हुआ था, राइट। तो सिचुएशन वाज वेरी डिफरेंट। और फाइनली जब वो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर देखते हैं तो देन he gets confirmed that actually he has reached the different world। वो उन्होंने टाइम ट्रेवल कर लिया है, ठीक है। सो now he decides to take tickets and wants to go to different places। अब वो सोचता है डिफरेंट प्लेसेस में जाने के लिए। तो अब वो डिफरेंट प्लेसेस में जाने के लिए वो सोचता है, तो उसके लिए वो टिकट काउंटर पे जाता है टिकट्स खरीदने के लिए, ठीक है। तो when he went to purchase the tickets, तो टिकट्स खरीदने के लिए जब वो जाता है तो there when he asked the ticket clerk to figure out the money, ठीक है, so he took out the money, चार्ली took out the money। लेकिन जब ये पैसा बाहर निकालता है, when he takes out the money, right, the clerk says that do you want to skin me, मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? And then he gets scared because when he sees that the money, वो तो ओल्ड करेंसी पूरा वो चल रहा था, तो उसको लगा यार कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे चीटर समझकर अरेस्ट कर ले, so it will be better to escape from here। तो जेल में ना जाए, प्रॉब्लम में ना फंसे, इसलिए वहाँ से वो क्या करता, वहाँ से निकल लेता। He runs away from there, right? Charlie runs away from there, but इसी इंसिडेंट्स को यहाँ सभी को बता रहा है कि मैं थर्ड लेवल पे गया हूँ। अभी एक्सप्लेन कर दिया। नाउ ही हैज एक्सप्लेन दैट हाउ ही रीच थर्ड लेवल, और क्या उसने वहाँ देखा कि उसको कंफर्म हुआ कि दैट वाज द थर्ड लेवल, बट नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट। ओके, बट ही इज कंफर्म्ड कि देयर इज थर्ड लेवल। अब वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि अगर मेरे पास ओल्ड करेंसी होंगे तो मैं यहाँ इजिली मैनेज कर सकता हूँ। आई कैन इजिली मैनेज हियर इफ आई हैव ओल्ड करेंसी। सो व्हाट ही डज, ही एक्सचेंजेस, वो क्या करता है, पुराने करेंसी खरीद लेता है ऑफ $300। $300 के ओल्ड करेंसी ही परचेजेस, राइट। द मोमेंट सैम कम्स टू नो, he was taken aback, he thinks that oh, why is he doing such things, right? So he was really worried for him, but all of a sudden Sam disappeared। ये लाइन है that aren't money mister says the clerk। ये लाइन भी शो करता है सी एंड
money, mister, both the words are not used now. ये अब use नहीं होता है. This was used there in 19th century in some literature, which is not, this is the old words, right, outdated words. So it also says that the poet, the author wants to give that touch, वो touch देना चाह रहे हैं. That's why this line is used over here. Okay. Then after when he came back from there, वो $300 का ओल्ड करेंसी खरीद लेता है. ठीक है, $300 का ओल्ड करेंसी खरीदने के बाद, हालांकि वो कुछ प्रीमियम देना पड़ा उसके लिए और 200 से कम ही उनको मिला वापस. ठीक है, ओल्ड करेंसी. बट देन ऑल्सो ही वॉज रेडी, राइट, एंड ही ट्राइड टू फाइंड थर्ड लेवल afterwards with the old currency, but he never found it. और उसकी वाइफ भी परेशान होने लगी कि यार क्यों उसके पीछे पड़ो हो. नाउ लीव इट, डोंट लुक फॉर दैट, अब नहीं जाना तुम्हें थर्ड लेवल के लिए, डोंट थिंक. तो फिर से वो सोचता है चलो यार ठीक है, इफ इट इज नॉट देयर. सो ही अगेन गेट्स इन्वॉल्व्ड. अब फिर से अपने को इन्वॉल्व कर लेता है क्या करने के लिए, स्टैम्प कलेक्शन में. स्टैम्प कलेक्शन में एक वर्ड होता है फर्स्ट डे कवर. फर्स्ट डे कवर, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फर्स्ट डे कवर. फर्स्ट डे कवर का मतलब होता है व्हेन एवर द स्टैम्प्स आर इश्यूड, जब भी स्टैम्प इश्यू होता है, ठीक है, जब स्टैम्प इश्यू हो, राइट, तो दैट वेरी डे स्टैम्प कलेक्टर खुद खरीदते हैं एंड देन इनवेलप पर पेस्ट करते हैं एंड देन दे मेल टू themselves, वो अपने को ही मेल कर लेते हैं. इसलिए बिकॉज दिस वे द पोस्ट मास्टर पुट्स द डेट, वो डेट डाल देते हैं जिससे ये पता चलता है, प्रूफ होता है कि जिस दिन स्टैम्प इश्यू हुआ उसी दिन मैंने उसको खरीदा. ठीक है, और उस एनवेलप को कोई खोलता नहीं बिकॉज दैट इज ब्लैंक, वो ब्लैंक पड़ा होता है. तो अभी चार्ली क्या है कि पुराने जो उनके कलेक्शन है उसको वो देख रहा होता है. ठीक है, उसी पुराने कलेक्शन में एक लेटर निकल कर आता है, एक एनवेलप होता है जिसमें डेट पड़ा होता है 1894. यस, 1894 का डेट पड़ा होता है. तो ही इज सरप्राइज दैट कि यार ये कैसा है. वो जब निकालता है तो ही वाज सरप्राइज टू सी दैट द एड्रेस वाज ऑफ grandfather, right? When he opens that, it was not blank. Usually the envelope is blank. फर्स्ट डे कवर जो होता है वो ब्लैंक होता है. क्यों? क्योंकि वो केवल भेजते ही हैं बस स्टैम्प के लिए, स्टैम्प कलेक्शन के लिए. ठीक है, राइट. तो दैट यूजुअली दैट इज ब्लैंक, बट द एनवेलप ही ओपन दैट वाज नॉट ब्लैंक, देयर वाज अ लेटर. और उस लेटर में चार्ली के द्वारा लिखा हुआ नोट था. ठीक है, चार्ली, सॉरी नॉट चार्ली, बाय सैम वेनर, राइट. सैम वेनर के डिसअपियर होने के बाद वो लेटर मिलता है जुलाई 1894. उसमें लिखा है डेट और उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि मैं यहाँ 2 सप्ताह पहले मैं पहुँच गया. आई एम हैप्पी हियर, द सिचुएशन इज़ वेरी गुड, राइट. पीपल आर प्लेइंग पियानो, आई एम एंजॉइंग, द वर्ल्ड इज़ वेरी गुड एंड यू ऑल्सो कीप ट्राइंग. अब इसको बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यू ऑल्सो कीप ट्राइंग एंड वन डे यू विल रिच हियर एंड एट दिस स्टोरी एंड्स. तो क्या होता है सस्पेंस कि जो फ्रेंड इसको ये सिखा रहा है, द फ्रेंड हु इज टेलिंग हिम देयर इज नो थर्ड लेवल एंड दैट फ्रेंड ओनली रिचेस देयर. इज इट पॉसिबल, यू थिंक ओवर इट, इज इट पॉसिबल दैट देयर शुड बी एनी थर्ड लेवल. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है, वाज देयर थर्ड लेवल, राइट. तो अगर थर्ड लेवल होता, इफ देयर वुड बी थर्ड लेवल, many people would go to that third level. Yeah, when he was searching, when he was looking for the same, he could find it again. फिर से उसको मिल जाता, right? उसके वाइफ को मिलता, इसके फ्रेंड्स को मिलता, किसी को नहीं मिला. ठीक है, it means third level does not exist, right? Third level does not exist. What was the third level? Third level was simply a refuge from the reality, simply an escape from the problems, according to these explanations. But according to last explanations, where he finds a letter, where date is also mentioned, date is mentioned, right? And then after he tries to confirm, वो confirm करने के लिए बैंक में जाता है, तो वहाँ उसे पता चलता है कि सैम ने $800 के पुराने करेंसी खरीदे. ठीक है, पुराने करेंसी खरीदे, उन्होंने एक्सचेंज कराए. तो ये confirm हो जाता है कि सैम एक्चुअली एक्सचेंज दैट ओल्ड करेंसी एंड उनका लेटर भी इनको मिलता है. तो ये दो घटनाएं जो है, इट क्लियर दैट एक्चुअली ही रियली रीच्ड थर्ड लेवल. तो दोनों पॉइंट यहाँ पर आता है, राइट, कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट, थर्ड लेवल डज नॉट एग्जिस्ट. नाउ सपोज द क्वेश्चन कम्स, वाज देयर थर्ड लेवल और नॉट? सो यू कैन राइट बोथ द आंसर्स. If you write yes, there was third level, right? So you have to justify with this one.
And if you say there was no third level, it was just an escape, it was just an escape, right, from the problems, then this logic you will give. Like, I mean, whatever answer you write, you have to justify your answers and your answer will be correct. In fact, the story is imaginary, right? It is the product of imagination. Yes. So but here both the points are mentioned, so accordingly when you have to write the answers, you will write and that will be correct. I hope the story is clear to you, right? And you must have understood, you must have enjoyed. Okay, thank you.